गई है गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दालिन, ਇਹਦੇ ਚ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਆਹੋ ਵੇਖ ਲਓ ਯਾਰ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਦੁਆ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗਜ਼ਬ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਬਰ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਓਏ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਪੜਿਆ, ਬਾਬਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ 2,500-3,000 ਪੈਗੰਬਰ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। खुदा दी कसम मैं परेशान हो गया कि असी खत्मे नबूवत मान के हर नमाज च पैगंबर आने का दावा कर रहे हैं। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यार केड़ी दुनिया में, अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਾ ਚਲਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੁਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਯਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗਜ਼ਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪੈਗੰਬਰ ਲਿਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਬਚਾ। ਰੋਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ WhatsApp ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੋ ਬਸ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈਜਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ डॉक्टर साहब ने सर बड़ी अच्छी गल की है। डॉक्टर साहब ने लास्ट में जी गल की, उन्होंने कहा कि ठीक है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आए ने, उन्होंने एक देखो कि बाइबल अंजील मुकद्दस उतरी है। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਵਫਾਤ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਕੌਲ ਤੁਹਾਡੇ, ਮੇਰਾ ਅਕੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜੀ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਪਣੇ ਅਕੀਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਨਬੀ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਐਮਡੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਮੰਨੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला। ਬਾਕੀ ਤੋਂ ਮਾਰ ਸ਼ਾਰ ਵਾਲੇ ਵਾਕਿਆ ਤੋਂ ਪਰੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਈ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ ਜੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਜੀਲ ਨੂੰ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੰਨਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਆਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੀਵੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੀਵੀ ਕਿਹਦੀ ਬਣਾਣ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਵੇ ਮੋਮਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰੌਨ ਬਣਾਈ। ਆਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਟਲੀ ਡਿਸਟਰਬ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਆਲੇ ਹੀ ਵਿਗੜੇ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ WhatsApp ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੋ। या अल्लाह रहम फरमाए। ये कुछ और अरसा गुजरेगा जो साडे बच्चे आने ने ना, इन्हें हरूफे मुकत्तेआत च भी अजरा नबूवत कर देनी है। तुसीं देख लिया जिन्हां दा मतलब ही पूरी कुल कायनात नूं नहीं पता। अलिफ लाम मीम एदा मतलब है नबूवत जारी है, नाउज़ बिल्ला। हाँ जी थले किथे गया। दूजी मिसाल भी वेख लो, आसिया ते हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। अगर यह मिसाल बनती नहीं तो ना ही कोई तुक बनता है। वो तो वैसे अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि मोमिन इंज होंदे आ। यह वेखो यह होंदे मोमिन, यह नहीं किया कि वो सारे जिहड़े मोमिन आ वो आसिया ते मरियम बन गए। लेकिन बिल फर्ज महाल एक मिनट वास्ते यह फर्ज कर लो कि यदा यही मतलब है कि जिहड़े मोमिन आ वो मरियम ते आसिया बन जाते। तो पहला सवाल तो यह है कि वो फिर कल्ला मरियम ही क्यों बनया, आसिया क्यों नहीं बनया। आसिया बन जाना चाहिए सी सर। ਇਹ ਵੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਮਰੀਮ ਤੇ ਆਸੀਆ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਇਬਨੇ ਮਰੀਮ ਬਣਿਆ बैठा, दोवे बने हुए ने। अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। और एक और भी बात जिनको ये नहीं पता कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की बहुत खसूसियात हैं। ਐਵੇਂ नहीं कि सीधी सीधी तुसी गल पा दी हुई है। तौबा इस्तगफार, कुरान मजीद ने उनकी भी तारीफ फरमाई है और उनकी बड़ी खसूसियात है। वो बड़ी नेक पाकबाज औरत है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱਕਦਾ ਹੱਥ ਕਿੱਥੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿल्ला ਅਸਤਗਫਿरुल्लाह। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਜਾਓ, ਇਤਨੀ ਖੂਬसूरत पाक लाइफ है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੱकेगा देखो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। रोनी भाई वो आएंगे ना, मैं आपको दोबारा ले लूंगा। आपका शोर आ रहा है, आप बैठे। ਤੇ ਗੱਲ ਐ ਵੇ ਕਿ ਤੌਬਾ ਇਸਤਗਫਾਰ, ਅੱਲਾ ਪਨਾਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਕੀ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਸਮਝਦਾਰ ਆਦਮੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੂਰੇ ਫਾਤਿਹਾ ਚ ਇਜਰਾਏ ਨਬੂਵਤ ਆ गई, अस्तगफिरुल्लाह अलअज़ीम। जड़ा जो हर बंदा नमाज में पढ़ता होगा उससे उससे इजराए नबूवत, जड़ा इजराए नबूवत दे हक च दलील दे रहे ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਹੇਬ ਰਾਜਾ ਵੀ ਇਹ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਕਿ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸੂਰਤ ਫਾਤਿਹਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀ, ਤਾਬਈਨ ਤਬਾ ਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈ ਅਗਰ ਇਹ ਦੁਆ ਸੀ ਤੇ 1400 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ 53 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਿਰਕੀਆ ਕੀਦੇ ਤਰਿਆ, ਪਿਓ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਨੱਸ ਗਿਆ, ਮਸੀਤ ਤੇ ਕਦੀ ਵੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ। ਉਹ ਦੋ ਦੁਨੀਆ ਜਹਾਨ ਦਾ ਫਰਾਡ, ਧੋਖਾ, ਫਰੇਬ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ, ਅਯਾਸ਼ੀ, ਫਹਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਸੀਰਤੁਲ ਮਹਿਦੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਦੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਤਸਬੀਹ ਫੜੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨੇ ਅਸਤਗਫਾਰ ਪੜਿਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਇਹਨੇ ਉਹ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਕੋਈ ਜ਼ਕਾਤ ਦਿੱਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਦੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਬਾਦਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਈ ਨੱਸ ਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹਨੇ ਮੱਥਾ ਰਗੜ ਕੇ ਘਸਾਤਾ ਆਪਣਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਕੇ, ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੈਨੂੰ ਮੁਹੰਮਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮੁਹੰਮਦੀ ਬੇਗਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਲਿल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ਅੱਲਾਹ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਐਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਬੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਅਬਦੁੱਲਾ ਆਥਮ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਰੋਣ ਪਿੱਟਣ ਬੈਣ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਰਾਤ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਬੈਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚੇ ਹੀ ਮਸੀਹ ਮੌਦ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਆਥਮ ਮਰ ਜਾਏ, ਯਾ ਕੋਹਰਾਮ ਮੱਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਉਹ ਟੋਣੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਣੇ ਪੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ਗੋਈ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਤੇ ਨਬੀ ਆ ਗਿਆ। ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਜ਼ਰਾ ਹਿਲਾਈਏ, ਇੱਕ सोचने ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਦਿੰਦੇ हैं जी। अहमदी नीचे लिख के बताएं कि भट्ट साहब जमात अहमदिया की तरफ से कह कर गए हैं कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी का दावा मुजद्दद का था। यार तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ आपस 'ਚ ਵੀ ਬਿਆਨ नहीं मिलते। कल उसामा ने कह दिया आपके नबी, उसने कहा नबी क्यों बोला आपने उनको नबी क्यों बोला? अल्लाह यार केड़े पासे की ताहिर अमजद इस बात पे लड़ पड़ा उसामा से कि उन्होंने कहा आपके नबी, आपके मिर्जा साहब आपके नबी, वो नबी पे लड़ पड़ा। अगर नबी नहीं है, ये जो आपके बड़े बड़े बुर्ज बैठे हैं यहाँ पे, अगर ये उनको नबी नहीं समझते, उनको दावा नबूवत का नहीं है, तो मेरे भाई किस काम लगे हुए हो यार? ये कितने तावीली आप मुझे बताएं। एक ये नीचे नबी नहीं आगा तो इजराए नबूवत की दलील क्यों दे रहे हैं? हाँ, काम ही खत्म हो गया पीछे, हद नहीं हो गई सर। सिर्फ घुमान वास्ते मैनू एक गल दसो सीकर साहब, वो कह रहे हैं वो मुजद्दद का दावा नहीं था, वो मुजद्दद थे। ये क्या है? ये क्या मजाक है यार? अंदाजा करो ना, मुजद्दद थे तो की मतलब होते कोई सर्टिफिकेट आया सी तो कि मुजद्दद ने। अच्छा मुजद्दद का दावा नहीं था, ए हुणे तुहानू कढ दिया दावा मुजद्दद दा। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਮਾਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ, ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ हैं दावा नहीं था वो थे। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ अकल ते दसो। आसिफ भाई आप जी देखें, पता है बात क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। इस्लाम जो है वो तो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ठीक है? नहीं है कोई मबूद सिवाय अल्लाह के, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं, ठीक है? इनका जो है ना, इनका नया कलमा बन चुका वही है, इनके दिमागों में रहता है। इनको कहा गया है कि अब नहीं कोई खुदा सिवाय इसके जो मसीह मऊद ने हमें जिसकी शनाख्त कराई, अब कोई कुरान नहीं सिवाय इसके कि वो कुरान जो मसीह मऊद ने हमें बताया, ठीक है? अब कोई नबी नहीं वो जो हमें मसीह सिवाय उसके कि जो मसीह मऊद ने हमें बताया, ठीक है? तो यानी वो तो कहते हैं कि खुदा है ही कोई नहीं बेसिकली। तो देखा जाए ना तो जमात अहमदिया जो है उसमें ये जितने भी आ रहे हैं, ये हो गए या टोनी भाई हो गए, और जितने भी अहमदी हैं, फेवरेट 49, आसिफ भाई लव यू हो गया, थोड़ी देर रुक जाए। अब साथ साथ हमारे स्पॉन्सर हैं मसीह मऊद, उनकी कंपनी की तरफ से, क्योंकि हमें स्पॉन्सरशिप आती है, उनका पैगाम है कि आप तमाम चंदे अपने वादाजात मुकम्मल करें, ताकि उस खसूसी लिस्ट में जिस तरह डॉक्टर आमर लियाकत जीतो या दूसरे जो रमज़ान ट्रांसमिशन में जीतो पाकिस्तान या बाकी जो भी प्रोग्राम होते हैं, मैं इतने नहीं देखता,
उनमें ये जो शोबदाबाजी की जाती है कि नाम लेके दुआ की जाती है, इसी तरह खलीफा वक्त भी आपके लिए दुआ करें और आप मीठा मीठा और खूबसूरत खूबसूरत बरकत बरकत महसूस करें। ये हमारे स्पॉन्सर की तरफ आपका पैगाम था। इसी तरह शिरक जारी रखें, चंदों से अपने आप को भर लें, मार दें अपने आप को। वसीयत देते वक्त हक महर भी बयान कर दें जो आप लेके खा चुकी हैं, लगा चुकी हैं, क्योंकि जमात को आपको बताना पड़ेगा कि आपके पास कितने कंगन हैं, किस साइज के हैं, उनकी वैल्यू क्या है। उसके लिए उन्होंने वेबसाइट्स का भी हवाला दिया हुआ है, आप वहां से चेक करें। कोई जाने ना जाने, जमात जरूर जानेगी कि आपका घर कितना बड़ा है, उसमें कमरे कितने हैं, आपके वैल्यू क्या है, कहाँ पे आप रहते हैं। एक एक चीज की आपको वैल्यू बतानी पड़ेगी, तब जी वसीयत जी होगी। जी। और अगर आप नहीं कमाती, कोई टेंशन की बात नहीं, कोई मसला आप नहीं। बता दें कि मेरे हस्बैंड कितना कमाते हैं, फिक्स कर दे अपनी पॉकेट मनी, उधर से चंदा दे जी। जी, अगर आप कुछ नहीं भी कमाती तो आपके ऊपर लाजिम है कि $250 यूएस वाले, उससे कम आप नहीं लिख सकते। इसी तरह बाकी जगह के लिए भी हिदायत जारी कर दी गई हैं, आप प्लीज 250 से नीचे जी नहीं जी लिख जी। सकते। और अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको लगता है आपके पास पैसे नहीं है, तो उसके लिए भी माँ बाप को कहें आपका चंदा फिक्स कर दें, उसमें से चंदा दें। आपकी पॉकेट मनी फिक्स करें, उसमें से चंदा दें जी। बिल्कुल, पॉकेट मनी पर भी चंदा जी, अगर लगेगा, आप पेंशन पर भी अनएम्प्लॉयड भी चंदा हैं। लगेगा, पेंशन पर भी चंदा लगेगा और हक मेहर पर भी चंदा लगेगा। जी आपकी जी ऐसी की जी। तैसी और आप सिर्फ अपने यही आप को नहीं, बेच चुके सिर्फ हैं यही जी। नहीं, सिर्फ यही नहीं, अगर आप अनएम्प्लॉयड हैं और बरतानिया में रह रहे हैं या यूरोप में रह रहे हैं, तो आपको जो बेरोजगारी फंड मिलेगा उसके अंदर से भी आपको अदा करना पड़ेगा। जी हाँ, ये जी, है ईद और ऑफर, उसमें आपको ये है बरकत रमजान पड़ेगी, पैकेज। उसमें बहुत आपकी शुक्रिया। बरकत का जी जी, उसमें आपकी बरकत पड़ेगी और बरकत ऐसी पड़ेगी कि गवर्नमेंट सोशल बेनिफिट इंक्रीज कर देगी। यहाँ का प्राइम मिनिस्टर सोचों में पड़ जाएगा, रात को फरिश्ता उसके कान में आके चपेट मार के कहेगा उठो सोशल बेनिफिट बढ़ा दे, जी बरकत जी जी। और अगर प्राइम मिनिस्टर के चपेट मारने पे आपको जेल हो जाती है, चंदा देना तू बरकत पा दे जी। सीकर भाई, अगर प्राइम मिनिस्टर के चपेट मारने पे आपको जेल हो जाती है, तो जेल में कमाई गई कीमत भी आप चंदे में दे सकते हैं। जेल की मेहनत चंदे में जाएगी जी। बिल्कुल आपके ऊपर लागू है, आप जहां से भी कमा रहे हैं, तमाम आपको कोई गिफ्ट करे, आपको अगर कोई ईदी भी दे, जी हाँ। अली खान अगर आपको ईदी भी दे, उस पर भी चंदा है। अगर आपका बच्चा पैदा होने वाला और आपने नियत की है कि उसको आप ईदी देंगे, उस पर भी आपने चंदा देना है। क्या होगा इससे? बरकत होगी, इससे बरकत ही बरकत होगी। आप जितना देंगे उससे से ज्यादा आपको मिले ना मिले, खलीफा को जरूर मिलेगा। और अगर आप बढ़ चढ़ कर देंगे अपना तन मन धन सारा कुछ, तो यकीन करें नाम लिखकर आपके लिए खुसूसी दुआ की जाएगी। और वो दुआ जी 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 शाह साहब आप कुछ कह रहे हैं? और उन लोगों के लिए जिनकी शादी अभी नहीं हुई लेकिन जमात अहमदिया में उनके चक्कर चल रहे हैं और वो गर्लफ्रेंड्स वाले हैं, तो जो वादे आपने अपनी गर्लफ्रेंड से किए हुए हैं कि उसको पेरिस घुमाऊंगा, उसको यहाँ पर, उनके ऊपर भी चंदा आप ले सकते हैं। उसके लिए उनके भी ऊपर आप आ चंदा सकते ले हैं, नहीं सकते, आपको देना पड़ेगा, दे सकते वरना हैं, ना दे ही सकते आपकी हैं, आपको शादी देना होगी, पड़ेगा, ना वरना सदर साहब ना आपकी आपकी शादी होगी। रिकमेंडेशन देंगे। जी जी, ना आपकी शादी होगी, ना आप स्टोर पे जा सकेंगे, ना मुरब्बी साहब आपका निकाह पढ़ाएंगे, ना आपके घर वाले खुश होंगे, और आप बर्बाद हो जाएंगे अगर आपने ऐसा ना किया तो। जी जरूर जी करें। जी। रुक जाए रुक जाए रुक जाए। इस मुश्किल की ये शादी भी हम करने लगे हैं। अगर आपकी गर्लफ्रेंड मुल्हिद है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड इस्लाम में नहीं है, उसको वेट मत करें, टाइम ज़ाया मत करें। हजूर को खत लिखें और बताएं कि वो खुदा को नहीं मानती, हजूर कहेंगे ब्याह कर लो जी। बिल्कुल, और आपसे कोई पूछ नहीं होगी। शर्त यह है कि आपके चंदे पूरे होने चाहिए, क्योंकि चंदा वो चीज है, माली कुर्बानी, जिसका जगह जगह हर जगह उते थले सजे खबे सैडा ते चार चुफेरे बयान किया गया है। यही चंदा आपके काम आएगा। बकौल मुफ्ती मुबशर के जब एक अहमदी मर जाएगा तो कब्र में फरिश्ता आके पूछेगा उठोए चंदा दिता ही? वो कहेगा जी। तबलीग की या? कहेगा जी। आ जा जेड़ी तेनू जन्नत कही सी ना, उत्थे ले चले जी भाई। जी हाँ, अब आपको नमाज पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको ज़कात देने की कोई ज़रूरत नहीं, हज उम्रे पे जाने की कतई कोई ज़रूरत नहीं। आपको सिर्फ ज़रूरत है चंदा देने की। चंदा देते रहें और अपने आप को आप दोज़ख के गहरे तरीन गड्ढे में ले जाते रहें। माशाअल्लाह, एहसनल जज़ा। और इस जी वक्त जी जी जी। अगर आप दूर हैं, कादियान से दूर हैं, अगर आप पाकिस्तान से दूर हैं, तो एक्सटेंशंस पे काम करें। आपके बहिश्ती मकबरा की नई ब्रांचेस खुल चुकी है, वहां पे चले जाएं जी। सर वो अमानतन है, बिल्कुल उसमें आपको फुल प्रोटोकॉल दिया जाएगा। जब वो संदूक निकाला जाएगा हम तब भी आपसे चंदा लेंगे। इसलिए एक और पेशकश इन्होंने आपकी मदद के लिए किया है कि अगर आप मुकम्मल प्रॉपर्टी के मालिक नहीं हैं, फिर भी आप वसीयत में वो दे सकते हैं, ताकि जब आप मर जाएं तो आपके साथी को हम मार देंगे, क्योंकि उसको वो घर बेचकर वो हिस्सा देना पड़ेगा, वरना कैश में उसकी अदायगी करनी पड़ेगी जी भाई। अगले पुल गए ठहरो जरा। यार ये मुझे बताएं कि ये लोग ये स्कीम जो है ना, इसको समझते क्यों नहीं है लोग? कि देखा जाए जितनी आपने चीज़ें गिनवाई हैं ना,
वो सारी बेकार कैंप वाली बातें हैं, ठीक है। तो ये लोग अपनी एक मुमलिकत क्यों नहीं बना लेते जहाँ सारे के सारे लोग जो हैं वो इन्हीं के काम करें, किसी को तनख्वाह नहीं दी जाएगी, कपड़े दिए जाएंगे सफ़ेद रंग के पहनने के लिए, ठीक है, या झोंपड़ी एक दे दी जाएगी ताकि वो अपने आप को, अपने सर को बारिश वगैरह से बचा सकें। अच्छा, मैं अब एक और, सॉरी मेरे बड़े प्यारे भाई आसिफ भाई, मैं साथ साथ ना आपको बताता हूँ कि जमात अहमदिया कुल मिला के एक सर्कल की तरह, आप जहाँ से भी चलें वो सर्कल कहीं ना कहीं मिलेगा। आप देखें ये जो आपने इतनी लंबी बताई थी लिस्ट चंदों की, जी उसमें जी जी, मैं कहीं भूल ना जाऊं, प्लीज प्लीज, मैं कहीं भूल ना जाऊं। जी अगर आपको लगता है कि आपके शोहर कहीं और चक्कर चला रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपके शोहर ने कहीं और शादी की हुई है, तो आप वसीयत फॉर्म निकलवाएं। उसमें कितने कंगन, आपके शोहर की क्या प्रॉपर्टी डिटेल्स हैं, कहाँ कहाँ आपके शोहर का पैसा जा रहा है, तमाम चीजें आपको अपने सदर जमात से मिल सकती हैं। जी बिल्कुल, सदर जमात इस मामले में बहुत अच्छे हैं, तो इसलिए तमाम लड़कियां अच्छे ताल्लुकात मुरब्बियों और सदर जमात से रखें, यही काम आएगा। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ऊपर लिखा गया है चंदा तहरीक जदीद, इसके लिए ख़ास तौर पे कहा गया और इसके मसारिफ बताए गए, इशाअत इस्लाम, मसाजिद की तामीर, जामियात का क़याम, कुरान करीम के तर्जुमात, ये तराजिम, ये सारे आप याद कर लें। अब मैं आगे पढ़ता जाऊँगा, आपको लगेगा कहीं ना कहीं इन चारों में से कोई ना कहीं एक और चंदे में जाके ज़रूर बढ़ेगा। वक्फ़े जदीद, चंदा एमटी इंटरनेशनल, क्या ये इशात नहीं है? वक्फ़े जदीद क्या है? लिटरेचर इनकम, ये जो आप इशात करते, किताबें करते हैं, क्या ये उसमें नहीं आता? सदकात को छोड़ दें, ज़कात को छोड़ें, ईद फंड, या खाना खाते हैं ये भी छोड़ दें, फितराना, फिदिया, ऐलान वसीयत, ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? वसीयत की बात आ गई है। अच्छा अगली बात देखें आप, इसके बाद इनकम फ्रॉम एनी प्रॉपर्टी, मरियम शादी, बिलाल फंड, बैतुल हमद, क्या ये मस्जिद का इधर नहीं लिखा हुआ? बैतुल हमद, बैतुल क्या था वो, बैतुल फतू, फिर दरवेश फंड, क्या वो इन चीज़ों में नहीं शामिल? चंदा फिर आ गया अंसार, खुदाम, अतफाल, लजना, और चंदा इज्तमा, क्या ये इशात में नहीं आता? चंदा इज्तमा खुदाम, ये इशात में नहीं आता? इज्तमा लजना ये नहीं आता? क्या मजाक है ये, हर जगह से जो चंदा घूमेगा वो बढ़ेगा इसी खूह में, और उस खूह का नाम है खिलाफत। खिलाफत अहाता खास, जिसमें अभी आपके चंदे की खास ज़रूरत है, क्योंकि नया मॉडल आने वाला मर्सिडीज़ का मेबैक खलीफा को ख़ास पसंद है, और उन्होंने फिर प्लस मॉडिफाई भी करानी है। अगर वो अभी ऑर्डर करेंगे फिर वो मॉडिफाई होगी तो फिर इस्तेमाल में आ सकेगी। और जी खुद जी सोचें, जी, क्योंकि खलीफा साहब को बिल्कुल पसंद नहीं ओन पे गाड़ी लेना, तो वो चाहते हैं कि वो पहले ही उसकी बुकिंग दे दें ताकि जब मॉडल आए तो उनको मिल जाए। जी जी देखें, जब वो मॉडल आएगा वो मॉडिफाई होगा। अगर आपके प्याले हजूर ने नई मॉडल की गाड़ी ना रखी तो गैर अहमदी क्या सोचेंगे कि यार ये अहमदी जो पिस गए हैं, 84 चंदे देते हैं, खुद इनकी हालत गैर है, इनके प्यारे हजूर नए मॉडल में नहीं फिरते, क्योंकि आपका तो मुकाबला है। आपके जी मुकाबले जी जीतने हैं। जी, और जब उस मॉडल पे आपके काम अटक रहे हो, आपकी जिंदगी बेरौनक हो, आपकी जिंदगी में कोई अच्छा काम ना हो रहा हो, आप जाए सुबह पानी की टूटी खोलें, उसमें से पानी ना आए, गैस ऑन करें, गैस ना आए, बाहर निकलें, धूप ना हो, घबराना नहीं, उस मर्सिडीज के पास जाए, प्यारे हजूर के पास जाएं, उनका झूठा खाना खाएं, आपके कामों में आसानी पैदा हो जाएगी। जी देखें पीरा जी, एक फ्रॉड इसमें और भी चल रहा है, आपकी तवज्जो उस तरफ नहीं जा रही। जी एक फ्रॉड ये और भी खलीफा साहब कर रहे हैं अपने मानने वालों से, कि ये जो मर्सिडीज हर साल नया मॉडल लेते हैं उसको ये चलाते Yes. दुआ से हैं, और कहते हैं हम इसमें पेट्रोल डालते हैं और आपसे पेट्रोल का चंदा लेते हैं, पेट्रोल के भी पैसे आपके जेब से जाते हैं, जबकि वो उसको दुआ से चलाते हैं। हमारे पास सबूत मौजूद है। ये बात भी आपने बहुत बड़ा फ्रॉड है। सर, आप पेट्रोल साथ देखो वो कितना जुमला भी महंगा है। कहना कि दुआवां रोज रोज नहीं होंदियां, ये भी तो देखें जी, इस ब्रॉड के नहीं स्पॉन्सर हैं देखें, सूफी रोज रोज नहीं होती, बनास्पति। लेकिन एक दुआ से वो 72 किलोमीटर कर जाते हैं ना, तो वो कौन सा रोज 72 किलोमीटर देखिए, चलते हैं? आप गलत बयानी कर रहे हैं जियाद साहब। 78 किलोमीटर चली, आपने 6 किलोमीटर उड़ा छड़े ने। आपने 6 किलोमीटर कम किए हैं, ये ज्यादती है जी। तो 2-3 दिन निकल जाते होंगे 78 किलोमीटर, तीसरे दिन फिर दुआ कर ले। देखें, ये प्रोग्राम के स्पॉन्सर है सूफी बनास्पति। महा को शौक हुआ डाइटिंग का तो वो ले आई सूफी में तवाज्जुह था, जब सुबह उठी तो महा थी ना सूफी। बाबर साहब, मैं आपसे चाहता हूँ कि आप काइंडली वो चला दें कि खलीफा साहब ने दुआ के साथ एक गाड़ी को 19 से 78 किलोमीटर का सफर कैसे नहीं करवाया। बिल्कुल बिल्कुल ये चलाना चाहिए। देखें, ये पेट्रोल फ्रॉड का भी को भी एक्सपोज करें आप। जी जी, मैं अब आपके कहने पे ना बिलखुसूस, क्योंकि अब आपने उस तरफ खास तवज्जो दिलवा दी और 6 किलोमीटर की है शॉर्ट, अब हमारी मजबूरी बन गई है ख्वातीन और हज़रात कि हम आपको ये सुनाएं कि खलीफा के इनकी दुआएं रोज रोज जो है ना वो क्यों, क्या मसाइल क्या आ रहे हैं, ये आप उनकी जुबानी सुन लें। 1 2 3 गो। मैं आपको प्राइवेट सेक्रेटरी साहब का वो दूसरा वाकया सुनाता हूं जो कि मेरे ख्याल में पब्लिश कहीं नहीं हुआ।
हजूर अनवर एक मर्तबा अमेरिका के दौरे पर तशरीफ फरमा थे और वहां पर काफिला जब रवाना हुआ तो हजूर अनवर ने खुद दरियाफ्त फरमाया कि गाड़ी में फ्यूल कितना है, हमने नेक्स्ट स्टेशन कहां पे रुकना है। ट्रैवल कर रहे थे एक सिटी से दूसरी जगह पे, तो प्राइवेट सेक्रेटरी साहब को कोई गलती लगी, उन्होंने जो गूगल देखा या जो भी जिस तरह भी उन्होंने जो बताया कि जी हजूर अनवर वो अगला जो है वो 19 किलोमीटर के बाद है, तो 19 किलोमीटर के बाद चल पड़े। वहां से 19 किलोमीटर के बाद कुछ नहीं था। हजूर अनवर का जो काफिला होता है ना, वो तमाम गाड़ियां आपस में बातचीत कर सकती हैं और एक की आवाज सब में जाती है। जब काफिला चला 19 किलोमीटर गुजरे, अब इस बात को जरा गौर से सुनिएगा, 19 किलोमीटर गुजरे, 29 किलोमीटर गुजरे, 39 किलोमीटर गुजरे, 49 किलोमीटर गुजरे। प्राइवेट सेक्रेटरी साहब फरमाते हैं कि फ्यूल की सुई एम्प्टी पे थी, ड्राइवर के माथे पे पसीना था कि इस वक्त कहीं भी गाड़ी रुक सकती है और गाड़ी में फ्यूल नहीं और हुजूर अनवर खड़े हुए हैं और वो सड़क पर खड़े रहेंगे। और हम उनमें इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ये बात कर सके कि हुजूर अनवर हम किसी को कॉल कर लेते हैं, कोई हमें फ्यूल पहुंचा दे, कोई और बात कर ले। प्राइवेट सेक्रेटरी साहब कहते हैं हमारे जिस्म में जान नहीं थी कि मैं ये बात कर सकूं। और जहां उन्होंने 19 किलोमीटर ले जाने का कहा था, वहां काफिला 78 किलोमीटर ट्रेवल किया और उसके बाद स्टेशन आया, फ्यूल स्टेशन। और जब वहां पे काफिला रुका है और हजूर अनवर ने फरमाया, ये मैं प्राइवेट सेक्रेटरी साहब के अल्फाज दोहरा रहा हूं, हजूर अनवर ने फरमाया जल्दी से टैंक फुल करवा लें, रोज रोज दुआएं नहीं होती इतनी। जी जी जी, क्या बात है, क्या देखें जी, मामला क्लियर हो गया है। एक गलती का अजाला, जहां जहां मैंने 70 किलोमीटर कहा वो उसको काटा हुआ समझा जाए। देखिए आपने कम किए थे, ये आप ज्यादती कर रहे हैं, ऐसे भाई ना करें। आप तो जाती कर रहे हैं। जी 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 जी। तो भाइयों बात ये है कि अगर अक्सर ऐसा एक होता है बात कि आप इसमें- लेट उठते हैं, या साहब एक मिनट, या साहब मैं आप बहुत जोर से आ गया, भूल जाएगा। जी जी जी, अक्सर आप लेट उठते हैं, आप देखते हैं आपके टीचर आ गए हैं, आप ट्यूशन पढ़ने के लिए, आपके वालिदैन कहते हैं बेटा सर आ गए हैं जल्दी जल्दी कर लें, आप कहते हैं पापा मैंने तो खाना भी नहीं खाया। अब टीचर बैठे हैं क्लास लेने की, बाबर साहब आप समझ गए होंगे, आप बैग पे चले गए, आप बड़े तेज हैं, मुझे पता चल गया। अच्छा, तो जैसे ही आप टीचर के पास बैठते हैं, आपको टेंशन है कि सर को मैंने काम भी चेक करवाना है, सर ने मुझे ट्यूशन भी देनी है, मेरे एग्जाम्स भी आ रहे हैं, खाने के लिए अगर टाइम निकाला तो मैं क्या करूंगा, इसका भी हल हम आपके सामने पेश खिदमत किए देते हैं। ये जिनकी फोटो आप देख रहे हैं मेरी आईडी के ऊपर, इनसे 4 पीछे अगर आप चले जाए तो जो पहले पहले खलीफा थे उन्होंने खूबसूरत इसका हल बताया। जी एक नया पैकेज है आपके लिए जमाते अहमदिया की तरफ से। अगर आपके टीचर आ जाए, आपका सबक जारी हो, उसके दौरान अगर आपको भूख लगे तो कैसे खाना खाया जाए, बाबर भाई? जी सर, ये ले, आपने आज से जितने अहमदी बच्चे माँ बाप सुन रहे हैं, आपने अपने बच्चों को लंच बॉक्स कोई नहीं देना, उनको वैसे ही भेज देना है, क्योंकि उनके लिए एक स्पेशल पैकेज है जो हम गैर अहमदियों को बताकर जेलस करना चाहते हैं। जी हजरत हाफिज रोशन अली साहिब रज़ी अल्लाह अन्हु हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु के पास पढ़ा करते थे। एक दिन उन्होंने अभी खाना नहीं खाया था कि पढ़ाई का सिलसिला शुरू हो गया। उन्हें भूख के सबब बड़ी नकाहत थी, वो शर्म के मारे कह भी ना सके कि मैंने अभी खाना खाना है, मगर अल्लाह ताला जो राज़िक और कुन फयकून का मालिक है, उसने उसी पढ़ाई के दौरान हजरत हाफिज साहिब पर कशफी हालत तारी की और कशफ में खुदा ताला ने उन्हें घी में तले हुए पराठे और भुना हुआ गोश्त मुहैया कर दिया, जिसे आप खाते रहे। और खुदा की कुदरत, हजरत खलीफतुल मसीह अव्वल रज़ी अल्लाह अन्हु को भी खुदा ताला ने इत्तला दे दी
कि आप तो पढ़ा रहे हैं और आपका शागिर्द कश्फी तौर पर मजे मजे के खाने भी खा रहा है। हजरत साहिब बारहा पढ़ाई के दौरान हाफिज साहिब की तरफ नजर उठाकर देखते और फिर पढ़ाने में मशगूल हो जाते। जब वो खाने से फारिग हो चुके, कश्फी हालत खत्म हो गई, तो हुजूर फरमाने लगे, हाफिज साहब कल्ले कल्ले। हाय 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 क्या हाय, मोहब्बत का अंदाज था। क्या बात है जी। क्या अच्छा, मोहब्बत का अंदाज से है। बाखबर वाह। जी 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 एक बात जो है आपने नोट की है कि इनके खुदा के पास एक ही मेन्यू चल रहा है, पराठे और गोश्त। पराठे और गोश्त, वो जहां कहीं भी बेचता है पराठे और गोश्त ही है बस। कोई और कोई शहर नहीं पकाते हो डिफरेंट भी है, डिफरेंट भी है। आप इधर ही रुके, आप एक उसके हलवाई अपने है मुंह में डिफरेंट पानी बात। आ गलत गया। और बातें देखिए करें। मजेदार बात आप ये है, लोग मजेदार बात करें, बात ये, मैं सॉरी ज़िया सॉरी रसूल को सॉरी गलत साबित सॉरी करूंगा। सॉरी, तमाम एमपी मेरे हक मजेदार में बात मैसेज ये करें, है। मैं गलत साबित करूंगा। शाह साहब की सुन लें, शाह साहब की सुन लें जी। शाह देखिए साहब देखिए बहुत जोर से मेरे पास कमेंट आया हुआ है। देखिए जरूरी बात ये समझने वाली है कि ये कोई आम कशफ नहीं था, यस, ये था जूम के ऊपर कशफ, इज्तमाई कशफ था, जिसके दोनों को अंदर हो जो रहा है। जिसको कशफ हो रहा है उसको भी पता लग रहा है और दूसरी तरफ भी कशफ पता लग रहा है। तो ये जी बेसिकली कशफ ऑनलाइन था, ये इजी नहीं था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आसान नहीं था। दिस इज कशफ ऑनलाइन, मल्टीप्लेयर, मल्टीवर्स लो कशफ। जी, हमने एक गलती का अजाला करवाया ज़िया रसूल से, अब ज़िया रसूल भाई की दूसरी गलती का अजाला पकड़े। एक मेन्यू नहीं है, ये पकड़े। दुलमियान जिला चकवाल में एक साहिब मुकर्रम रिसालदार अहमद खान साहिब ने खिलाफत उला के जमाने में बैत की। फौज में मुलाजमत करते थे। डेरा इस्माइल खान की छौनी में उनकी ड्यूटी थी। वो बीमार हो गए, अस्पताल में दाखिल हुए। अस्पताल का परहेजी का खाना खा खा कर उकता गए। कहते हैं एक दिल में ये तमन्ना मचली कि अगर चावल हो और साथ यखनी हो तो मजा आ जाए। कहते हैं अभी इसी ख्याल में था कि आवाज आई, चावल खा लो। और इसके साथ ही मैंने देखा कि मेरे पहलू में चावलों की प्लेट और एक बर्तन में यखनी पड़ी है। कहता मैंने चावल खा लिए, यखनी भी पी ली, बर्तन वहीं पे रख दिए। 1 महीना अस्पताल में दाखिल रहे, बर्तन लेने कोई नहीं आया। वो इन बर्तनों को अपने घर ले गए। वफात तक वो बर्तन खुदा की कुदरत की याद ताजा करने के लिए उनके घर में पड़े रहे। हाँ जी ज़िया भाई, इधर दसो मेन्यू चेंज होया कि नहीं होया? अच्छा ये सवाल है नीचे इन्होंने किया है कि वो बर्तन गंदे पड़े रहे कि वो धो के रखे हुए थे बर्तन, जरा इस पे भी वजाहत कर दें। जी 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 जहाँ जहाँ मैंने ये अल्फाज इस्तेमाल किया कि एक ही मेन्यू, उसको भी काटा हुआ समझा जाए। अच्छा चलो यार, वो बर्तन अब गायब भी तो करवाए ना। अच्छा पहले ये बता दे, बर्तन धुले हुए रखे थे यार यहाँ पे भी खलीफा बख्श साहब, आप यहाँ पे भी फ्रॉड करवा रहे हैं कि लोगों से जलसे जुलूस, जो आप जलसे आपके होते हैं तो वो जो वहाँ खाना बनता है उनके आप चंदे लेते हैं, खाना आप आसमान से मंगवाते हैं। ये क्या ड्रामेबाजी है यार, यार वैसे ये इतना बड़ी बड़ा बड़ी फ्रॉड। सोचने वाली सोच ये वाकई सोचने वाली बात है। जी हाँ, खाना आएगा आसमान से, पैसे देंगे आप, वाह क्या असूल है। वैसे यार वाकई यार, वैसे डॉक्टर डेयरिंग भाई यार आपका तो बहुत ही आगे का लेवल है यार। असल में अगर हम जमात आज बना लेना अगर इस किस्म की चंदों बेस्ड, तो कम से कम ये चवलें हम नहीं मारेंगे, ये जो वाजिब नहीं है। भाई देखें, हम अगर जमात बना लेना तो एक भी आइडिया हमारे दिमाग में ऐसा नहीं आना, ऐसे यूनिक आइडिया हैं। आज तक आपको पहले पता था कि बगैर पेट्रोल के गाड़ी 78 किलोमीटर चल सकती है? बताएं मुझे। बिल्कुल भी नहीं। आपके दिमाग में नहीं आइडिया आ सकते, ये उन्हीं शैतानी दिमागों में आ सकते हैं, हमारे दिमागों में नहीं आ सकते। हम फ्लॉप हो जाएगी हमारी जमात, जिसका काम उसी को साजे। आप लोग कर सकते हैं, आप लोग पता है क्यों नहीं कर सकते? आप लोगों के पास ये नहीं है। क्या खलीफा साहब से हाँ होगी बात नहीं, अभी रुक जाओ, अभी पूरी करने दो। 4 मेरे सवाल है। कभी आपने थूक वाला सवाल है। अब करूं कि ना करूं, करने तो दो ना। सवाल मेरे भी जवाब दोगे? मैं दूंगा, बिल्कुल दूंगा। पहले ये टॉपिक जो चल रहा है ना उस पे रहते हैं। अच्छा मुसव्वर, खलीफा का कभी थूक वाला शहद, कभी खलीफा की उंगली लगा हुआ शहद जिसमें वो उंगली अपनी डबोते, कभी खलीफा का थूक वाला तबरक वाला खाना आपने कहीं किया इस्तेमाल? मैंने खाना खाया हुआ उनका, बिल्कुल खाना झूठा उनका? हाँ। क्यों? तबर्रुक के तौर पे। क्या फील हुआ आपको खा के?
मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। क्या मतलब उसमें आपकी जिंदगी में कोई तब्दीली आई? मेरी जिंदगी में तब्दीली ये आई, मैं समझता हूँ कि बरकत हो गई। कैसे? उनके वजूद से, उनके वजूद से, ठीक है, उनकी वजूद की प्रेजेंस से ही बरकत हो जाती। ओके। नहीं, आपने जब वो खाना खा लिया, आपको खाने के बाद फील क्या हुआ? जैसे मैं बिरयानी खाता हूँ, मुझे अच्छा फील होता है। यार फील बताया ना, अच्छा फील हुआ मुझे भी, ठीक है। बरकत आ गई ना जिंदगी में। अच्छा फील हुआ। आपने पूछा फील क्या हुआ, मैंने मतलब बताया आपने feel खुद कहा बरकत, आपने कहा बरकत आ गई जिंदगी में। आपने कहा मुझे बरकत आई जिंदगी, आपने अभी बोला है। तो क्या हो गया, क्या गलत बोल हाँ, दिया? यही बोला है ना, बरकत आई। क्या गलत बोल अच्छा, दिया? वो जिंदगी में बरकत आपको कैसे फील हुई? मुझे इस तरह फील हुई कि मेरे काम समझ जाते हैं, मेरा काम कोई अटकता नहीं है। हाय ओए, ਹਾਏ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ हाँ जी, ये ਇਹ आइडिया ਥੋਕਾ ਲਾ ਚਟਿਆ ਹੋਇਆ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਵਰ ਗਈ ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ भाई जिथे जिथे दोस्तों, जी, और सारी गल समझिया भी अपने को थुक अवेलेबल नहीं है। ਯੈਸ yes, you don't have this saliva. ओए ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ You don't have this ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਈਡੀਆ proof. ਆਪਣੀ ਜਮਾਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਆਈਡੀਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੱਟਿਆ शुमार ਕੀਤਾ जावे। जी। तो मैं दोस्तों, खिलाफ हूं। यह थुक नहीं आप लोगों की बड़ी मैं परेशानी देख रहा था। आप लोग कह रहे थे, ज़िया रसूल साडा ते कैरियर ही एंड हो गया। ਅਸੀਂ नहीं शाह कुछ जी कर सकते। मौका दें। देखें जी, आप लोग बड़े परेशान थे कि ख्वाब देख रहा था जिसको आ रहा था पराठे और भुना हुआ गोश्त, लेकिन ये ख्वाब जूम पे था या कैसे चल रहा था, कैसे दोनों को एक ही ख्वाब नजर आ रहा था? तो आप देखें कि इस स्टोरी से इंस्पायर होते हुए ये यहां तक नहीं बात रुकी दोस्तों, खलीफातुल अव्वल तक नहीं रुकी, ये स्टोरी बॉलीवुड तक पहुंच गई है। अब उसका नजारा बाबर साहब अगर आप कैमरा खोल के दिखा सके। कौन सा वाला आपको मैंने एक yes. चीज भेजी है, 2 मिनट 28 सेकंड से उसको प्ले करें और अगर आप कैमरे पे दिखा सके। कहाँ जी पे भेजी है भाई? एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। जी। और ये नाजरीन, ये पहली दफ़ा कवर होने लगी है स्टोरी। प्लीज़ अपनी रिकॉर्डिंग्स ऑन कर लें, जिसने रिकॉर्डिंग जी, जिसने देखना है टू मेक कल्ले ही कल्ले, ये आपको पता चलेगा। जी कल्ले ही कल्ले कि ये भाई रिकॉर्डिंग ज़रूर करें। आपने खुद भी देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं, बल्कि बच्चों को ना ही दिखाएं, आप खुद ही देखें सिर्फ। देखें कहाँ तक हमारे खुलफा के जो किस्से हैं वो पहुंच चुके हैं, बॉलीवुड भी नहीं छोड़ा। प्यारे हजूर जिंदाबाद, प्यारे हजूर जिंदाबाद। भाई सारे लोग आंखें बंद करके प्यारे हजूर की प्यारी सी शक्ल को अपने दिल में ले आए, क्योंकि प्यारे हजूर का एक ऐसा कारनामा आपको दिखाने लगे कि किधर से प्ले करनी है? 2 मिनट 28 नफरत हो सेकंड से। जाएगी। प्यारे हजूर से और प्यार बढ़ जाएगा आपका। जी। अब आप देखें कि वो जो कशफ दोनों को नजर आया, दोनों को दिखाया, दोनों एक दूसरे का ख्वाब देख रहे थे। वजह क्या थी? What was the reason behind it? बाबर भाई तस्वीर हटा के जरा कैमरा दिखाएं। एक सेकंड यार, सेट ते करन दियो तुसी यार, बहुत डाटे आदमी हो अच्छा यार आपको पता नहीं हमारी वहाँ सेट वेट कर नहीं रही है करन यार। देंगे ये तो तुसी। यार सीकर वी हैव प्रॉब्लम इन प्रोडक्शन। हमारी प्रोडक्शन में प्रॉब्लम है। क्या हम मीडिया मैनेजर चेंज करें अपना? नहीं, हाँ ऑफ कोर्स, हमें मतलब अपना मीडिया विंग जो है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा। जी ये देखें जी, बहुत टिल्ला है। कल रात मेरे को एक सपना आया। कैसा सपना? सपने में मैंने देखा कि हम तीनों बैठकर दारू पी रहे थे और ये गूंगा बोला। चुप कर बे कुत्ते। यही बोला था इसने। तेरे को कैसे मालूम मेरे सपने में ये क्या बोल रहा था? अरे तुमने बोला ना हम सपने में तीनों बैठ दारू पी रहे थे, तो मैं भी सुनूंगा ना, मैं कोई बहरा थोड़ी हूँ। हाँ जी ये है वो ये है वो ये है जी वो सॉफ्टवेयर जिसके जरिए जनाब अली, ये है वो सॉफ्टवेयर, ये है वो जराए जिनके थ्रू मल्टीवर्स का कशफ भी मल्टीवर्स कशफ। सुभान अल्लाह। मैं बहुत अफसोस का मल्टीवर्स इजहार कशफ। करता हूँ खलीफा वक्त साहब, आपका प्लान फेल हो गया। मुझे याद आ रहा है कि वो जो मसीह मौद के कपड़े के साथ वो बादशाह अफ्रीकी बादशाह ने अपनी बीवी जिंदा की थी, हम वो भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास तो मसीह मौद वाली वो कमीज भी नहीं है। आपने वो वाकया वीडियो में सुना हुआ है दिया साहब, ऑडियो में? जी सुना हुआ है जी। अच्छा, वो बशर कालू साहब की जुबानी से। जी अगर ये चला दें जी वो चला दें, और ताकि मैं भी के साथ बरकत ये के कमीज हुजूर के भी लिए दिखाता हूँ चलाएं कि भाई ये कमीज भी हमारे पास नहीं है, हम तो हर तरफ फेल हो गए हैं जी। वेले रह गए, कौन वेले सा रह वाला?
किसको कह रहे हैं आप लोग चलाने? अफ्रीका के बादशाह की जब बेगम की अफ्रीका बात के थी तो बादशाह की बीवी जो मरती हुई जिंदा हो गई। बादशाह मैं तेरे एक कपड़ों से फैल। लब के लिए आना, रुको। जी जी। तो हाँ, मैं नाज़रीन कपड़े आपने ਲੱਭ ਲਿਆ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਲੱਭ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਇਹ ਹੁਣ ਖਲੀਫਾ ਬਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਦੇ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नहीं असी तो ਇਹ भाई ਆਵੇਂ ਜੇ ਕੱਪੜੇ ते असी नहीं कुछ भी कर ਨਾ ਇਹ ਕਮੀਜ਼ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਨਾ ਬਰਕਤ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦੀ ਹੋਈ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਨ ਸਾਰਾ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ओए ਤੁਹਾਡੀ खैर कमीज से मुबारक। ਹਾਂਜੀ, सुभान अल्लाह भाई। ਇਹ ਥੱਲੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੈਂਸਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਚਸ ਸ਼ਰੀਫ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ कोई गल ਨਿਸ਼ਾਨ नहीं, चलो ਲੱਗੇ कोई ਹੋਏ। गल नहीं, ओते कोई नहीं, गल नहीं, बदमज़गी जी। हो जाती है। सारे कादियानी प्लीज़ अपनी मोबाइलों की स्क्रीनें चूमना शुरू कर दें। हजूर की बेहतरीन किस्म की तबर्रक से लथपथ जो है वो कमीज़ आपके सामने पेश की जा रही है। नहीं, खलीफा तो बख्श साहब आपकी आंखों देखिए। में आंसू भी आने चाहिए, आपकी आंखों में आंसू भी आने चाहिए, और आपकी आंखों में आपके मुंह में टेस्ट भी आना चाहिए, और आपको खुशी भी होनी चाहिए कि ये प्यारे हुजूर के जो हैं बानी जमात हैं, आपके प्यारे हुजूर की कमीज़ आपको दीदार करवाया जा रहा है लाइव आज इस पुरनूर महफिल में। जी जी, ये मैं वैसे मैं इसको नीचे से मैं कट करना चाहता था, लेकिन चलो लग गई है। तो मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये क्लियर नहीं है मामला, कि ये बरकत जो कपड़ों से ढूंढ रही है, नीचे जो पोटी का निशान है, ये वाला हिस्सा अगर ओ कोई ज़िया काट के, साहब, खुदा दा वास्ता जे ज़िया यार। भाई थोड़ा सा मतलब वो फैमिली नहीं, नहीं, मैं वैसे भी काइंडली है। और सैरी की नहीं, थी ना इसको काट के अगर कोई इस्तेमाल करे, यहाँ से बरकत मिल जाएगी? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर इंटेंसिटी असल में क्या है कि डिफरेंट जगहों की डिफरेंट बरकतें हैं वो। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बहरहाल जी, लुब्बे लबाब यही है कि आपके पास ये कमीज भी नहीं है, इसलिए आपकी जमात नहीं चल सकती, फ्लॉप हैं आप। बुरे तरीके से हाँ, ये हाँ, ऐसे मौजों के बगैर जमात चलती नहीं है। मौजों के लिए ये कमीज होना जरूरी है, और वो आपके पास है कोई नहीं। आप जितने मर्जी मैले कर लें कपड़े, जितने मर्जी गंदे कर लें, ਇਹਦਾ अपना ही लेवल है। इतों तक पहुंचना मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन भी है। तो वो जो मेरा ख्याल है जो हमने अपनी जमात रजिस्टर करवाने के लिए एप्लीकेशन दी हुई थी, वो मेरा ख्याल है फिर वो वापस ले ली जाए, क्या ख्याल है? नहीं, मेरा ख्याल में अगर सोचा जाए इस बारे में तो हम भी मुबशर कालों के लेवल को पहुंच सकते हैं, अगर हम इस पे गौर करें सही तरीके से, तो मुश्किल नहीं होगा ज्यादा। फिक्र नहीं पहुंच सकते मेरे भाई। शायद सब कोशिश वो तो अपनी दरख्वास्त लिखें, वो अपनी जमात बनाने वाली दरख्वास्त लिखें, कशफ में जाएं और वहाँ अपने खुदा से दस्तखत करवाने की कोशिश करें। अगर हो गए तो शायद बात बन जाए, लेकिन ये ज़हन में रखना कि वो स्याही के छींटे ज़रूर पड़े ये सीकर साहब के मुंह पे। अगर नहीं पड़े तो फिर समझ ले कि फ्लॉप हो जाएगा। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੁਰਖ ਸਿਆਹੀ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਦੀ ਪੈਨ ਤੋਂ हाँ, सुर्खी के जो सुर्ख स्याही के छींटे सीकर साहब के कपड़े ते पैने चाहिए। ठीक हो गया। बाबर साहब, आप मिल गया आपको? वही छींटे, ये कहीं वही छींटे तो नहीं थे जो एक मुरीद पे पड़े थे और आपको याद ही आ गया क्या हुआ था? हाँ जी जी, डेविड बेकर, दिस इज योर जीसस। जी जी जी, सही कह रहे हैं। आम के चंदे के छींटे जो है वो मिल गया उस पर पड़ गए थे मरीज का। चलो जी, ये लो, ए फड़ो, ए लगी रहने दो तस्वीर, ते सुनो। बाकी टैप टैप करें जी। हजरत मियां मोहम्मद सिद्दीक साहिब सेखवा वाले बयान करते हैं, उनकी तस्वीर बड़ी करो। मेरी आंखों से पानी बहता था, आराम नहीं आता था। तो यार बादशाह के तो होने वाला है या दूसरे वाला? क्योंकि इसमें बादशाह तेरे कपड़ों से वो करेंगे, ये वो वाला है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ना करें आप, वो करेंगे वो कमीज जो वाला है है, वो कमीज वाला, ठीक है, वो जो उसने उसके, ठीक। और ये बहुत आप जो है ना लैंग्वेज, फाउल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। बादशाह आपके कपड़ों से वो करेंगे, और ये खलीफा वक्त साहब अभी कह रहे थे वो जी छींटे साथ वाले मरीद पे पड़े तो उसने कहा जी उठो सूरा नमाज पढ़। तो भाई इस तरह के अल्फाज ना यूज करें, महजब महफिल है। तो उनको हो गया है, अब हमने उस तरह की जमात हूबहू तो नहीं ना बनानी, को थोड़ा बहुत तमीज़ भी शामिल करें अपनी जमात में। ये मिर्ज़ा साहब का खासा था। जो जमात अहमदिया की कामयाबी का राज है वो तो हमारे पास है ही नहीं, तो फिर हम कैसे इतनी बड़ी जमात बना सकेंगे? हम तो नहीं, बिल्कुल अपनी तो इत्थे लड़ाई हो जानी है। हुण तुहाडे ते जिहड़ा वहलाम दे छिट्टे पै जाण
ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਉੱਠ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਨੱਪ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਫੜ ਲੈਣਾ ਤੇ ਧਾਰ ਲੈਣਾ ਥੱਲੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ। थोड़ा सा भी नहीं यार, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਤੌਬਾ ਕਰੋ। मैं भी रिहर्सल के तौर पे। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠੋ ਸੂਰਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਖੱਤੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਖਲੀਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ। देखिए मैं ना अभी मतलब वो जितने हमें क्लिप ढूंढते हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ अपने सुनने वालों को जो परमानेंटली हमें सुनते हैं, बहुत शुक्रिया हमें सुनने का। हम असल में आपकी फीडबैक के भी गुजारिश करते हैं। आप हमारी लाइफ के अंदर कोई चीज़ आपको बुरी लगे या कोई चीज़ आपको अच्छी लगे, जो आप कंटेंट और ज़्यादा लाइक करते हैं, वो काइंडली इनबॉक्स में सीकर के साथ, बाबर के साथ, मेरे साथ आप लोग शेयर कर सकते हैं अपने एक्सपीरियंस को। और अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप चाहते हैं इम्प्रूवमेंट के कोई ज़राए हैं, कोई चीज़ ऐसी है जो कि आप चाहते हैं हमारा बिहेवियर इम्प्रूव हो जाए, हमारा मतलब तंज़ो मज़ा में ज़रा लेवल बढ़ जाए, कोई इस तरह के आपने फ़ीडबैक देना चाहिए। बिकॉज़ वी आर ऑलवेज़ अपने स्टेक होल्डर्स को हम इनवाइट करते हैं कि वो ज़रूर हमें अपनी फ़ीडबैक दें, ताकि हम कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करके और बेहतर बना सकें अपने कंटेंट को। जी, तो बहुत शुक्रिया इसके लिए। मुझे फीडबैक आई है, वो कह रहे हैं कि आसिफ नदीम भाई जो है ये बहुत गुस्से में आ जाते हैं, और उन्होंने कहा कि इनको कहें कि थोड़ा सा गुस्सा जो है अपना कम करे, क्योंकि बहुत गुस्से में आके बात करते हैं अक्सर। जी आसिफ जी, जज़ाकल्लाह। हमारी जमात के जो खलीफा नूरुद्दीन होंगे ना, आपकी जमात के खलीफा बख्श साहब, वो भी आपको ढूंढने पड़ेंगे कि इतना बर्दाश्त वाला को बंदा है। अगर हम फर्ज करें खलीफा नूरुद्दीन बनाते हैं जनाब या आसफ साहब को या ये सीकर साहब को, तो इन्होंने भी तुम्हारा तिया पांचा कर देना है। क्योंकि इन्होंने अगर कोई किताब पढ़ी किसी की, तो आपको पता है कि इन्होंने कहा कि जब खलीफा नूरुद्दीन साहब जो है वो रान मोहन की किताब पढ़ने लगे तो फरिश्ते ने आकर मना किया। और मना कैसे किया? कहते हैं जी कि नूरुद्दीन को सख्ती के साथ इस किताब के पढ़ने से मना कर दो, खुदा ने कहा। अब फरिश्ता आता है और वो नूरुद्दीन, यानी अगर सीकर साहब को नूरुद्दीन बनाए तो इनको वो मना करेगा। मना कैसे करेगा? वो कहते हैं जी फरिश्ते ने इस इशारा को पाकर एक फिक्रा बनाया और बड़ी मोटी गाली देकर कहा, इस दी किताब नहीं पढ़नी। नहीं आप मैं नहीं बताएं, बनना, मैं मोटी खलीफा गाली अव्वल सीकर साहब बर्दाश्त करेंगे? नहीं, मैं खलीफा अव्वल नहीं जी, बनना। मैं फिर गुजारिश ये करता हूँ कि हमारे सुनने वालों में से जो हमारी जमात में यकीम नूरुद्दीन साहब की पोजीशन पे अप्लाई करना चाहता है, वो ये जुमला सुनने के बाद खुद ही हाँ डिसाइड जी, करके मुझे मैं पहले इनबॉक्स देख कर लो, दें। फरिश्ते ने ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਲਾਲ ਕਰ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਕਾਇਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੋਟੀ ਗਾਲੀ ਦੇकर कहा, इस डैश 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 ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜਨੀ। ਇਹ डैश डैश ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਪਾ ਲਓ। बस ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ तो जी। मैं अप्लाई करना चाहता हूँ लेटेस्ट। जो मुझे अभी वो मिल नहीं रहा, मैं 5 मिनट में आता हूँ, आप लोग बात करें। जी जी जी, कोई और सुना दे होती देर, कोई मसला नहीं है अगर आप इजी है तो। ना ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਜੀ 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 ਡੈਸ਼ ਡੈਸ਼ ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ जी ਸੱਚਾ हमें ਵਾਕਿਆ पता है सर, ये सच्चे वाकयात, ये भरपूर वाकयात, ये ਇਹ सच्चे TV वाकयात ਤੇ ਜਿਹੜੇ हमारे ਆਡੀਅנס पास। ਹੈ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਬਣਾਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ जी ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। नहीं, दूसरा ये ज़िया भाई, अब जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अभी टिकटॉक के ऊपर इतना इस लाइव का तो इतना मतलब वो रोब आ ही चुका है, इतनी तो कंफर्मेशन है ही कि ये जो बात भी करते हैं ये अपनी तरफ से नहीं कर रहे, ये सिर्फ किताबें पढ़ते हैं उनकी ना। जैसे वो फुरकान और वो फलाने टमकाने बैठते हैं ना, भाई हम तो कुछ नहीं करते, हम सिर्फ किताबें पढ़ते हैं। तो हम ज़रा थोड़ी सी बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, हमें ज़रा पता है कि किस तरह से माहौल बना के पढ़नी है। तो इनको अंदाज़ा है कि ये अपनी तरफ से कुछ नहीं लगे हुए, ये जो भी चीज़ होगी वो ऑथेंटिक इनके पास हवाला मौजूद होगा, कोई चैलेंज करेगा उसी वक्त हवाला मुंह पे मार दिया जाएगा ताबड़तोड़ तरीके से। यानी उसका आप तो ये कोई डर कहना नहीं होगा चाहती हैं चीज़ से। कि आपने फॉलोअर्स के जो ब्रेन वॉशिंग है वो कर ली हुई है, सिर्फ आपके पास वो हथियार नहीं है जो खिलाफत चलाने के लिए लाजमी होते हैं। जी, बस दावा करना बाकी है और हथियार चाहिए। जी जी, हथियारों की कमी है, वरना आवाम तो तैयार है, उनको पता चल आवाम चुका कि सारी बातें सही है इनकी। ये बड़े अफसोस की बात है यार, कोई रास्ता ढूंढे, कोई इस तरह का हथियार। चलो सारे नहीं तो कोई एक अद्धा ही लभ लो। मैं सोच नहीं रहा चार्जिंग वाली गुटी ले ला। ਲੱਭਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਫਤੀ ਮੁਬਸ਼ਰ ਕਾਲੋਂ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਓ। वो वैसे जे आ जावे ना ते मैं कहना ऐसी नहीं तैसी भी अगवा कर लो तो बस। जी वो नहीं, वो इसके लिए हमने रिक्वेस्ट की है मुसव्विर से, क्योंकि मुसव्विर भी बहुत बड़े बड़े वाक़यात सुना सकता है और ज़्यादा अच्छे तरीके से सुना सकता है।
तो हम चाह रहे हैं कि हमारे जो मुफ्ती आज़म हो हमारी जमात के ना, वो मुसव्विर साहब हो, ताकि वो आके बरकत और इस तरह की चीज़ों को अच्छे तरीके से, बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। या खुरम राना साहब आ जाएं, हमारे साथ शामिल हो जाएं, तो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। वाक्य वगैरह, वो मर्द दूध कैसे पीता उनका है। मैंने एक दुरूद मर्द शेयर का किया, दूध सुना आपने? उसमें वो दुरूद पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? जी जी सुनाएं। वो मैंने ग्रुप में शेयर किया है, अगर आप में से कोई अगर प्ले कर सके। ये देखें जी, नीचे जमाते अहमदिया के लिए एक बेहतरीन मशवरा आया है, एक भाई ने दिया है। मुझे लगता है कि इस मशवरा देने पर भी इनको काफ़ी हज़ारों यूरो पाउंड, लाखों यूरो पाउंड देने चाहिए। इतना कीमती करोड़ों पाउंड्स का मशवरा इन्होंने दिया है। कमीज़ हमने लगाई हुई है, ज़ाहिर है इनके पास मौजूद है। वो कह रहे हैं कि कमीज़ का एक बोसा 500 यूरो में। कमीज़ उधर लटका दें जाके, जिधर जब भी खलीफा साहब जाएँ कमीज़ साथ लेके जाएँ। 500 दी एक चुम्मी, इधर आके एक बोसा दिलाएं यूरो 500 यूरो का, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। और ये नया बिल्कुल फार्मूला, लेटेस्ट फार्मूला। पहले आपने भी बड़े बड़े याद किए, लेकिन एक हमारे भाई ने आपको मशवरा दिया है। मसीह मौद की कमीज़ है, लेकिन भाई भी हमारे थोड़े से जो है ना, वो उन्होंने थोड़ा ही सोचा है। भाई इस कमीज़ को सामने लटका के अगर ये 5 लाख यूरो का बोसा भी इस पर लिख देना, तो मर्जियों ने फिर भी नहीं बाज आना। 5 लाख यूरो का एक बोसा चल सकता है यहाँ पे। ओरिजिनल माल है जी, ओरिजिनल। लेकिन सिर्फ इन्ना ध्यान रखना कि जिन्हें थले बोसा ले लिया ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੱਖਿਓ। ਥੱਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਬੋਸਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਭਾਵੇਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣਾ। नहीं, उसके लिए एम्बुलेंस की ज़रूरत नहीं है ना। जी, तो नीचे जो बाजी हैं, बाजी आप 4 घंटे से लाइव सुन रही हैं, आपको ये नहीं पता चला आप मुसलमान हैं बाजी? हो बाजी, आप मुसलसल जो कह रही हैं, आपको ये नहीं पता चला मुसलमान है? खुदा का नाम है बाजी। राजे तेरे वास्ते भी लगी है, जा ले ला बोसा ते गाला काट के निकल जा जल्दी जल्दी ना, जेड़ा तेरा काम है। जमात दी तालीम फौरन दस के निकल जाया कर जल्दी ना। ये मसीह, ये कादियानियों के मसीह मौद की कमीज है जी, ओरिजिनल कमीज, जेन्युइन, उसकी तस्वीर है जी। बात नीचे ना नजर डालें, ऊपर ऊपर से देखें जी। पांचो जी मुसलमान है जी, मुसलमान है। चले अब आपको तसल्ली हो गई है, बस इतना कह दें जी हो गई है, इतना लिख दें, इतना लिख दें। चलो शुक्र है। चंदे बनाने की बात है ना, ये जो अभी आप बात कर रहे हैं, इनका बस चले तो ये कहें कि जी आपने कितना बिजली का बिल पे किया, कितना पानी का बिल पे किया, कितना गैस का बिल पे किया, उसके ऊपर भी परसेंटेज हमें पे करें। हाँ, ये डिटेल भी है वैसे, ये भी हो सकती है। ये वाकई है या आप बता रहे वैसे बता रहे हैं आसिफ भाई? मैं ऐसे आइडिया दे रहा हूँ, आइडिया। वैसे ये हम लागू कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम तो अब नए हैं, नए दौर के। कितने कितने फोन का बिल कितना आता है, कितने जीबी का डाटा तुम लोग यूज करते हो, कौन कितनी किस्त देते हो, सारा कुछ जो है ना हम अब इसके अंदर डाल सकते हैं, ताकि पूरा रिकॉर्ड हमारे पास हो, कोई झूठ बोल ना सके, चंदा ना छुपा सके कोई। जी हिबा नूर साहब पूछ रही, आई नेवर सीन दैट बिफोर, ओनली द कोट एंड रिंग। जी जी, ये लेटेस्ट माल आया मार्केट में, क्योंकि वो कोट और रिंग वाला जो है वो काफ़ी उन्होंने यूज टू हो गए, लोग चला लिया हुआ उन्होंने वो फार्मूला। अब जिद्दत आनी चाहिए ना, लेटेस्ट से लेटेस्ट जो है वो तरीकाकार सामने आना चाहिए चंदे लूटने का। तो अब ये कमीज़ आ गई है, और अगर इसके घिसने का, फटने का डर हो तो इसको शीशे में लगा दें। ये भी बेहतरीन मशवरा हमारी तरफ से फ्री है। शीशे में कमीज लगा दें, शीशे के ऊपर से चुम्मी दें, चले यूरो जो है वो कोई 150 काम कर लें, तो शीशे के ऊपर से बोसा दें और 500 यूरो फ्री बोसा। भाई मैं तो कह रहा हूँ कि ये ना कमीज हटा देते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि जमाते अहमदिया अपने जो है ना वो मोबाइल चूम चूम के मोबाइल ही अपने तबाह कर लें। तो होठों से टैप टैप कर रहे, होठों से बंद कर देंगे जी, मोबाइल ना खराब कर लें किधरे, फिर साढ़े को बराड़ ते किन्ने आना। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਖੁਸਰਿਆ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਮਾਰਤਾ, ਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਜ਼ ਵਿਖਾਈ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੀ ਚੁੰਮ ਚੁੰਮ ਕੇ ਸਾੜ ਦੇਣ। शाह साहब, जिन लोगों ने मोबाइल चूम लिए हैं उनके ऊपर तो चंदा वाजिब हो गया, अब उन्हें देना पड़ेगा अब तो। आहो जिन्हें जिन्हें चुम्मी आ थले पैसे कड्डो इत्थे। ये देखते जाएं जी, ये देखते जाएं। ये कमीज है, ये है वो तिलिस्माती अंगूठी जो किसी भी ईंट पे, किसी भी टाइल पे, किसी भी एंगल पे, किसी भी फर्श पे, ठीक है जी, किसी तरीके की भी
टेबल पे, ठीक है, और ये कमाल दिखा देती है, पिंक कारपेट वाली जगह पे, सुर्ख कारपेट वाली जगह पे, ठीक। अब यहां पे आप देखें, मतलब कमाल है। और इस फोटो में सबसे खास बात ये है कि इस फोटो में आप पीछे देखें कि अंग्रेज खड़ा है, उस अंग्रेज का मुंह अड्डा 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 गया है कि की हो रहा है। मुंह अड्डे का अड्डा रह गया। अड्डे का अड्डा रह गया। वो कह रहे हैं या खलीफा ए की तरीका, ठीक है। तो हक्के बक्के रह गए अवाम सारी कि ए केड़ी रिंग लैके आए ने, ए पावर रेंजर्स दी है, किदी चार्जिंग नहीं मुकरी, ते वो टैप टैप करी जाते हैं जनाब। ते इधर देखो जी लुबना भट्ट साहब जमात को ही देने हैं पैसे। अच्छा स्पीकर साहब है तो दसो भी है, जी अंगूठी लाते या इसको, ये ईंट को जब अंगूठी लगाते हैं ये, तो इससे ये होता क्या है? मतलब एक ईंट से सारी बदगा बन जाती है इनकी, जो ईंटों में सीमेंट खुद लग जाती है या सरिया खुद डल जाता है, होता क्या है? जी जी, वो कहते हैं जी कि इससे बेसिकली काम तेज हो जाते हैं, मस्जिद बनाने के काम तेज हो जाते हैं। बदगा तैयार हो जल्दी। हाँ जी, तगारी च मतलब वो जल्दी जल्दी सीमेंट जड़ा घुल जाता है, धुप निकल आती है, खुश्क हो जाता है जल्दी। देखिए जी आपका बयान जो है वो हकीकत से मुताबिकत नहीं रखता। इनको तकरीबन कोई 15 और 20 35 साल हो गए हैं, इन्होंने 35 साल से भी ज्यादा, इन्होंने 100 मसाजिद तमीर करने का ऐलान किया था, आज तक पूरी 100 नहीं हुई। आप कैसे दावा कर रहे हैं कि जी अंगूठी लगाने से रातों रात बदगा तैयार हो? सर अंगूठी नहीं ना लगी ओदी बुनियाद च। अच्छा उधर अंगूठी अंगूठी उधर गवाची सी? अंगूठी नहीं सी, या तो 100 ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਗ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗੂਠੀ ਲਾਤੋ ਤੇ 100 ਮਸਜਿਦਾਂ ਤਿਆਰ। देखो वो नहीं ना कीता उन्होंने, वो रियलिस्टिक लोग ने, वो वारी वारी कर रहे हैं। यानी मिर्जा ताहिर साहब ने ये नहीं किया, उनके पास अंगूठी नहीं थी? नहीं, उन्होंने नहीं था किया। ये जो है इनके पास मतलब एक नया दौर आया है, तो इन्होंने एक नई ट्रेंड निकाला। नहीं, मिर्ज़ा ताहिर साहब के पास भी अंगूठी थी। मसला ये है कि ये जो नया टेक्नोलॉजी आई है ये उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, ये बाद में फरिश्ते लेके आए हैं इनके पास। टीची टीची दोबारा आया, उन्होंने कहा जी ये अंगूठी में सॉफ्टवेयर नहीं सी आया कर दिया। अंगूठी वाले जी, जिन्हें तब- स्टार हाँ के जी, वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी, ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है इसका। ये मिर्ज़ा मसरूर साहब की दौरे खिलाफत में ये नया एक तरीका आया है, लेटेस्ट अपडेट है ये। अच्छा तो सीकर साहब फिर आपकी अगर कोई दुआ सलाम है खलीफा साहब से, तो जी। इनका कोई पाकिस्तान में साल बाद एक चक्कर लगवाया करें, कोई रोड शोड बना लिया करिए, कोई मोटरवे कोई। मैं पूछया सी, वो कहते नहीं अब नहीं, हुण नहीं, तुसी पहले अपने को ठीक करो बस। ला दिया करे आके तो निकल जाया करे कहते बस। नहीं नहीं नहीं, वो कहते पाकिस्तान में तुम लोगों पे अल्लाह का अजाब है, तो अल्लाह के अजाब में हम जाके बरकत नहीं डाल सकते। अच्छा ठीक ठीक। जी 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 जी। इस बरकत के लिए मलका बरतानिया की बैत करना जरूरी है, ताहयात तेरी वो एक वफादार रहूंगा। बंदे ने पूछा सी ना कि अब कब विजिट होगा अगला, तो उन्होंने कहा कि जब एक बार वहां से कूच हो जाए ना, तो फिर वहां पे बरकत खत्म हो जाती है, तो वापस नहीं फिर जाया जाता। तो पाकिस्तान महरूम हो गया जी, माजरत दे नाल। तुसी हुण जो मर्जी कर लो, तुहाडी दरखास्त मैं फॉरवर्ड कर दांगा, लेकिन मैनू पता है कि जवाब की है। गाली नहीं भाई, गाली नहीं ब्रो, नीचे गाली कोई ना दे। अच्छा ये यहाँ पर एक सिस्टर ने बात लिखी है, फोनोग्राफ भी था इनके पास, मिर्ज़ा साहब के पास ऐसी भी कोई हाँ बात वो है डिस्प्ले पे इनकी, वो इनकी दाढ़ी और वो सब चीजें वगैरह, वो सारा कुछ उन्होंने रखा हुआ है। इसमें तो चलो कोई नहीं यार, वो उनकी याद म्यूजिक सुनने के यादगार भी शौकीन थे मिर्ज़ा साहब? यार। उस पे कोई हो सकता है नाच शात कोई चलती हो, कोई अच्छा। नहीं उनसे देखें, उन चीजों से बरकत तो मिल सकती है ना। हाँ बरकत। हाँ अंगूठी से मिल सकती है तो बाकी हर चीज से क्यों नहीं मिल सकती? अच्छा चले पाकिस्तान में नहीं आते तो एक चक्कर कादियान दा लवा दे, उत्थे सड़कां ही पक्कियां करा लेण। उत्थे हल्ले भी धूड़ घट्टा मिट्टी उत्थे उड्डण डिया हुंदा हल्ले भी। ओ डेविड बेकर, खुदा दा ना ही। हाँ जी, हम जैलाना बातें कर रहे हैं। एक्चुअली भाई आपकी ऑप्शन है कॉल की, आए जरा हमें तबलीग कर दे थोड़ी सी, आ जाए जरा, बड़े दिन हो गए। प्लीज हमें कोई अच्छी इल्म मार्फत की बातें बता के हमारे मुंह बंद कर दें। अच्छे अच्छे कमेंट्स दोस्तों, सिर्फ लिखें कि भाइयों कादियानियों शिर्क छोड़ दो, बस ये लिखें, नीचे टाइप करें। गाली देने से क्या हो जाएगा? क्या होगा गाली देने से? आप लिखे शिर्क छोड़ दो, बस इतना लिख दें। हाँ, तुम लोगों से बात करने का कोई फायदा? जी 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 बिल्कुल, काम ढीठ हो चुके। अच्छा ये सीकर साहब, ये सात जो ईंटें पड़ी हुई हैं ये बरकत शुदा है?
या सिर्फ ये एक? मुझे नहीं आइडिया, ये मेरे ख्याल में ये बाकी लोग लगाएंगे। इनकी एक ईंट वो देखे ना, ये लगती है जहाँ पे उसकी पेशानी लगती है ना जाके इमाम की, हाँ। ये ईंट वो वाली होती है, फ्रंट वाली। नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है बाकी वाले भी बरकत शुदा हैं, या मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी यहाँ से बरकत लगवा लगवा के। शायद हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे सजदा गया है ना जिया भाई, जो सजदा गया है यहाँ पे लगेगी खलीफा की, ठीक है, ईंट, और उसके ऊपर अंगूठी भी मस की जाएगी। उसके बाद जो बाकी है ना, जो जमात के खास कारकुनान हैं जो साथ जाते हैं, बाकी हिस्सों पे एक एक ईंट वो लगाएंगे। अच्छा 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 अच्छा, मैं कहा शायद ਇੱਥੇ ਬਰਕਤ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੁxtਲਿਫ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋਣ ਵੀ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿੱਟ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਅਮਰੀਕਾ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਜਾਪਾਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਬਾਦਗਾਹ ਤਮੀਰ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਲਾਸਿਕ ਤਸਵੀਰ ਇਹ ਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਮੈਂਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। क्लासिकल। भाईजान नाल हले चेहरे 500 पर देखें इनके वो शैतानियत सॉरी तमानियत कैसी है चेहरे पर देखें जी, जैसे पता नहीं किड्डा वड्डा काम कर रहा है, किड्डा को तीर मारन लग गया है। अच्छा सीकर साहब, वैसे आ बंदा जिहड़ा है ना मिर्जा मसरूर, ए सोचदा ते होना कल्ला कि यार मैं वेखो किड्डी दुनिया नूं पागल बनाया ही किन्नी दुनिया नूं मैं पागल बनाया भी, मेरे पल्ले कख भी नहीं है, मैं इधर खलीफा बनया ते जनाब करामतां मेरियां, किन्नी दुनिया नूं बेवकूफ बनाया मैं। और यार वो मेरा एक दोस्त सी, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਫਨ ਸਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਫਨ ਸਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਸਨ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਤੂਤਾ ਸ਼ਰਤੂਤਾ ਮਤਲਬ ਬਖੀਰ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਕੀਦਤ ਤੇ ਹੈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੁੜਨਾ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਲ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁਰੀਦ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਬੜੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬੀਅਤ ਬੜੀ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਕੁਛ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ 786 ਲਿਖ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬੜਿਆ ਕਿ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਸੋਚਦੇ ਤੇ ਹੋਣੇ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ। भट्ट साहब माजरत, मैं जी जी भट्ट साहब आगे ने माजरत, मैं ना उसकी लाइव पे हूँ, मैं कॉल आपकी नहीं उठा नहीं सका। आ जाए अच्छा यार, जी जी आसिफ, रात के 2 बजे है, ठीक है जी जी आसिफ भाई, जी करे रेस्ट करे। अल्लाह हाफिज़। गुस्सा आपने कम कर देना, वो रिक्वेस्ट आई जी। ठीक है जी, ठीक है। जी भट्ट साहब। जी जनाब। जी भट्ट साहब, आप मुझे वो कॉल कर रहे थे, मैं उस टाइम ये लाइव पे क्योंकि बंद कर रही मेरा फोन एक था। वो मैंने आपको मुजद्दिद के दावे के हवाले से मिर्ज़ा साहब की तहरीर भेज दी है, क्योंकि नीचे पता नहीं किसने लिखा था, आपने ही कहा था कि भाई नीचे किसने लिखा कि उनका दावा नहीं था। ये मैं देख लेता हूँ जी। ये होप बाजी है नीचे, ये कह रही थी शायद। ठीक है, वो हालत भेज दिया मैंने। तो मैंने वो काजमी साहब से बात एक करनी थी, वो रह गई थी। काजमी साहब सुन रहे हैं आप मुझे? जी जी हाँ जी, वो मैंने 1974 की कार्रवाई के हवाले से बात की थी, तो आपने कहा था कि अगर पाकिस्तान में अगर कोई ये कहे तो उसको 14 साल की सज़ा है, इसी तरह कुछ बात थी। 14 साल मैंने नहीं कहे थे, मैंने कहा था कि अगर कोई कि जो डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान डिक्लेयर कर रही है कि ये 1974 की कार्रवाई का मैन्यूस्क्रिप्ट है, अगर कोई पाकिस्तानी उसके ऊपर ये कतगन लगाता है कि ये झूठ है और ये परजर्ड है और ये प्रेजुडिस है, इसमें कोई इस तरह की अगर कोई वो इल्ज़ाम लगाता है, तो वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत जुर्म है, ठीक है। और मुझे तादाद नहीं पता कि इतने 14 साल है, 14 साल तो उम्र कैद होती है, उम्र कैद तो नहीं मुझे लगता है इसके अगेंस्ट होगी, लेकिन इसके अगेंस्ट जुर्माना और वो है जी कितनी कैद है आई एम नॉट श्योर, बट ये जुर्म है कि जिस चीज़ अच्छा ठीक, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स कहें कि ये चीज़ जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट है पार्लियामेंट की उसका, और उसको कोई आके डिनाई करे,
जी जी ठीक है, तो इस हवाले से मैं आपकी दुरुस्ती कर देता हूँ कि डॉक्टर मुबशर हसन जो है वो वज़ीर तालीम थे, और कार्रवाई छपने के बाद उन्होंने कहा है कि ये सारे जो है फ्रॉड थी। ठीक है, उनका इंटरव्यू मौजूद है, लाइव इंटरव्यू यूट्यूब के ऊपर, तो आप वो देख लें। दूसरी बात ये है माजिद कि साहब, भट्ट साहब, उन्होंने ये नहीं कहा। हाँ जी, मैं आपको बता, आपने सुना वो इंटरव्यू? जी वो उन्होंने ये अल्फाज नहीं इस्तेमाल। जब उन्होंने ये कहा कि पहले ही प्लानिंग थी और इसका सारा कुछ हुआ, तो उसका क्या मतलब है? वो फिर ड्रामा ही था ना, जो भी था। नहीं, ये तो आप मतलब निकाल रहे हैं ना, चीज़ें बात तो वही बनती है, आपने मतलब फ्रॉड निकाल। कह दिया, उनके अल्फाज नहीं थे। देखे, हाँ, अब देखते हैं, हम भी हाँ जी, चीजें देखते हैं, ऐसे ना करें। हाँ ठीक है, देखिए अगर वो कह रहे हैं कि ये प्लानिंग पहले ही थी, तो वो